Hello, ji. Assalamu alaikum, student. I am Sir Samad Daud, Abdul Samad Daud, teaching in Tabani School of Accountancy, one of the best institution of Pakistan for CA and ACCA purpose. I am teaching in Tabani School of Accountancy since 1998. That is from day one. I am in 25th year of my teaching, Alhamdulillah. And teaching आपका business mathematics. Previously it was AFC 03. Now presently it is PRC 02. That is QMT, quantitative method and technique, in which I am actually teaching business mathematics portion. Today we arrange this video for final assessment or final most important questions. Presently today we start with financial mathematics, one of the most important area of business mathematics. So today we inshallah deal with certain few questions, very important question of financial mathematics. So starting from compounding and discounting. You know about what compounding and discounting, with a process of determining how much amount of money we shall pay or received in future. Of today's value of money is called as compounding. Converting today's value of money into future value of money is called as compounding. Compounding and discounting both are related with time value of money. So converting present value of money into future value of money is called as compounding. Similarly, a process of determining how much amount of money we shall paid or received in future worth today is called as discounting. It means that discounting and compounding are reverse of each other. It means that converting present into future is called as compounding. On the other end, converting future into present value is called as discounting. So today we discuss with certain questions of compounding, which are very important from examination point of view. In fact, examiner had asked such questions in AFC exam. PRC का बेटा पहला बैच आपका अभी जाएगा, मार्च 19 से इंशाल्लाह आपकी एग्जाम है. तो हम आज सर्टन क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट 5-10 क्वेश्चन वो कंपाउंडिंग से रिलेटेड और डिस्काउंटिंग से रिलेटेड करेंगे. अभी आपकी स्क्रीन पे मेरे ख्याल से कंपाउंडिंग के क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ठीक है ना. पहला क्वेश्चन हम उठा लेते हैं आपका, दैट इज क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ठीक है ना. और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. ये एक्चुअली पास पेपर का क्वेश्चन है, बहुत पहले पास पेपर में बेटा ये आया हुआ है, मैनुअल पेपर में आया हुआ था. इसे हमने MCQ बेस बना के अल्हम्दुलिल्लाह दिया हुआ है ना. A sum of rupees starting with a sum of rupees 18750 is left as a will by a father to be divided between two sons of age 12 years and 14 years in such a way that when they attain maturity at 18, the amount received by each son at 5% simple interest will be the same. Find the sum allotted at present. हमें दो आपका टोटल अमाउंट 1870 है आपका, दैट इज 18750. इसे दो लड़कों में डिवाइड करना है. इन दो लड़कों में डिवाइड हमें किस तरीके से करना है बेटा? हमें इस तरीके से डिवाइड करना है कि दोनों को इनकी मैच्योरिटी पे अमाउंट सेम मिले. एक 12 साल का है, एक 14 साल का है. 12 साल वाला 18 साल का होगा तो 6 साल की फ्यूचर वैल्यू हो गई, और आपका दैट इज 14 साल वाला 18 साल का 4 साल के बाद होगा. दोनों की फ्यूचर वैल्यू को इक्वेट करना है. तो जैसे आपका दैट इज दोनों की प्रेजेंट वैल्यू को अगर मैं लेट कर लूँगा, दोनों की प्रेजेंट वैल्यू को लेट करके चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं. सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1, सोल्यूशन. स्टार्ट करते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन चलना शुरू हो गया. टोटल अमाउंट कितना है बेटा? 18750 है, ठीक है ना. लेट जो 12 साल का लड़का है उसे आपका दैट इज टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है, प्रेजेंटली टोटल अमाउंट उसे कितना मिल रहा है कि 12 इयर्स वाले एज के बच्चे को, 12 इयर्स एज वाले को प्रेजेंटली कितना मिल रहा है आपका. फॉर एग्जांपल के तौर पे प्रेजेंटली आपका ही रिसीव्ड व्हाट ₹X. तो ये 12 इयर्स वाले को है, तो 14 इयर्स वाले को कितना मिलेगा? टोटल अमाउंट कितना है आपका? दैट इज 18750. तो सेकंड वाले को कितना मिलेगा? 18750 माइनस एक्स. हम वाई लेट के भी कर सकते हैं, हम दो इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक ही वेरिएबल को यूज़ करें तो टाइम हमें थोड़ा सा कम लगेगा. तो पहला वाला लड़का जो 12 साल का है उसे एक्स अमाउंट मिल रहा है, तो उसकी फ्यूचर वैल्यू आपका दैट इज S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? X × 1 + RT. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है?
रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दैट इज अपना 5% है, 5% सिंपल इंटरेस्ट है, तो 5% सिंपल इंटरेस्ट है तो 0.05 हो गया बेटा। टाइम कितना हो गया आपका, दैट इज 12 आपका दैट इज 6 ईयर्स हो गया। तो ये आपकी दैट इज फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, S2 इज इक्वल टू व्हाट आपका 18750 माइनस एक्स इन टू व्हाट आपका 1 प्लस 0.05, और सेकंड वाला लड़का 18 साल का हो रहा है तो 14 से 18 का हो रहा है, इट मीन्स दैट 4 साल हो गए। तो S इज इक्वल टू और P इंटू 1 प्लस RT लगा दिया, इसमें भी S इंटू P इंटू 1 प्लस RT लगा दिया। अब T जो होगा वो 4 ईयर्स होगा। ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों मेच्योरिटी पे सेम हो गए हैं, तो x इंटू 1 प्लस 0.05 इंटू वॉट 6 हो गया इज इक्वल टू वॉट आपका दैट इज 18750 माइनस एक्स इंटू वॉट 1 प्लस 0.05 इंटू वॉट क्या हो गया 4 हो गया। इसको आप इक्वेट करके तो हम x की वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो x की वैल्यू आएगी आपके पास वो कितनी आएगी आपका, दैट इज क्या कहा क्या हुआ है, उसने ये कहा हुआ है कि आपका दैट इज टू द सन ऑफ द एज 12 ईयर्स, यानी कि आपका दैट इज 12 साल वाले लड़के को कितना अमाउंट मिलेगा पहले केस में। तो 12 साल वाले अमाउंट को आपका दैट इज अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो वी शैल गेट वॉट 9000, ठीक है ना। ये 9000 रुपीज़ कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करके देखेंगे हम तो 9000 आएगी। तो इसका मतलब 12 साल वाले बच्चे को आपका दैट इज कितना मिला, 9000 रुपये मिला, और आपका दैट इज 14 साल वाले बच्चे को कितना मिलेगा 18750 माइनस एक्स, तो इट विल गिव यू वॉट 9750। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 9000 हो गया और सेकंड पार्ट का आंसर 9750 हो गया। टोटल सम 18750 था, दो लड़कों में डिवाइड हुआ सिंपल इंटरेस्ट पे, एक 12 साल का था एक 14 साल का। क्विकली हमने डिसीजन लेना है बेटा कि 12 साल वाला लड़का जो है वो 18 साल को जब मेच्योरिटी पे पहुंचेगा तो 6 साल के बाद पहुंचेगा, तो डैट मीन्स उसकी फ्यूचर वैल्यू हमने प्रेजेंट वैल्यू एक्स लेट कर ली, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था तो एक्स इंटू वॉट आपका दैट इज 1 प्लस 0.05 इंटू वॉट क्या कर दिया हमने 6 कर दिया। दूसरी इक्वेशन को भी हमने इसी तरीके से बनाया, दोनों की मेच्योरिटी पे वैल्यू सेम थी, दोनों को इक्वेट करके हमने आंसर निकाल लिया। दिस इज व्हाट, ये पहला क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह चला गया। नाउ व्हाट आपका दैट इज सेकंड क्वेश्चन पे मैं पहुंच गया। सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। तो इसको हम लेके चलते हैं, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आपका दैट इज, सेकंड क्वेश्चन को मैं रीड करता हूं, आप जरा ध्यान से देखिएगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फॉलोइंग 4 ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर 10 ईयर्स। 10 साल की इन्वेस्टमेंट के लिए आपका दैट इज ऑप्शन दिए हुए हैं, 10 ईयर्स के लिए दिए हुए हैं कि 10 साल की इन्वेस्टमेंट है, और आपका दैट इज पहला इन्वेस्टमेंट है 10% सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा 10% कंपाउंडेड एनुअली, तीसरा 9% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, चौथा 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। विच ऑप्शन इज बेटर? पेपर का क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। वन ऑफ द बेस्ट वे, इसका सबसे आसान तरीका क्या है, व्हाट इज द सिंपलेस्ट मेथड टू सॉल्व व्हाट सच टाइप ऑफ, जब भी डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन आए, दिस इज डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन, वी हैव टू टेक व्हाट डिसीजन, नो व्हाट आपका देयर इज वर्किंग तो रिक्वायर्ड है ही नहीं ना बेटा, वर्किंग इज नॉट रिक्वायर्ड, वी हैव टू टेक व्हाट, वी हैव टू मेक व्हाट डिसीजन। तो डिसीजन लेने के लिए एक तरीका तो ये है कि मैं प्रेजेंट वैल्यू को लेट करके सबकी फ्यूचर वैल्यू निकाल के डिसीजन लूं, दिस इज व्हाट बहुत लंबा मेथड है। और एक तरीका ये है जो कि वेरी वेरी सिंपल है, दैट इज व्हाट दी आपका दैट इज कंपाउंडिंग फैक्टर। अगर मैं सिर्फ कंपाउंडिंग फैक्टर की बेटा वैल्यू निकाल के डिसीजन ले लूँ ना तो मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा, ठीक है ना। कंपाउंडिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू सिंपल इंटरेस्ट मुझे पता होना चाहिए, कंपाउंडिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू सिंपल इंटरेस्ट क्या है ये मुझे मालूम होना चाहिए। कंपाउंडिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, दैट इज 1 प्लस RT। This is what called as compounding factor with respect to simple interest, and compounding factor with respect to what, ये compounding factor with respect to simple interest है, and compounding factor with respect to compound interest क्या है 1 plus I की power n। जबरदस्त। नाउ व्हाट, मेरे पास जो ऑप्शन दिए हुए, अगर मैं दोबारा क्वेश्चन पे जाऊं और मैं क्वेश्चन को देखूं तो पहला ऑप्शन मेरे पास क्या मौजूद है, 10% सिंपल इंटरेस्ट। तो 10% सिंपल इंटरेस्ट है, दैट मीन्स ये क्या दिया हुआ, आर दिया हुआ, और टाइम कितना दिया हुआ है 10 ईयर्स दिया हुआ है। तो मैं आपका दैट इज फर्स्ट केस के लिए तो मैं किस तरीके से निकाल लूँ, 1 प्लस वॉट, रेट कितना दिया हुआ है आपके पास, रेट इज सर वॉट आपका 10% है, ठीक है। तो 10% का मतलब 0.1 हो गया, टाइम कितना है सर 10 ईयर्स है, ये कंपाउंडिंग फैक्टर निकल आएगा, इसकी वैल्यू देख ली आपने यहाँ पर। दूसरा आपका देख लेंगे आप कि क्या है, कंपाउंडिंग एनुअली है। अब आपका दैट इज कंपाउंडिंग एनुअली कितना इंटरेस्ट है, 10% कंपाउंडेड एनुअली है, तो 10% कंपाउंडेड एनुअली
10% कंपाउंडेड एनुअली, ये 0.1 है, इनटू व्हाट आपका दैट इज 10, कितने साल है आपका, दैट इज कितने साल है आपका, दैट इज 4 साल है, तो 1 प्लस आई की पावर n, टोटल ईयर कितने हैं आपका, दैट इज 10 ईयर्स है ना, तो पावर क्या लिख दी 10, आंसर आ जाएगा। तो 1 प्लस आई की पावर n निकाल ली। तीसरे ऑप्शन में आपका दैट इज क्या है, थर्ड ऑप्शन इज व्हाट, अगर थर्ड ऑप्शन हम देखने के लिए जाएं तो थर्ड ऑप्शन में क्या है, 9% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो 9% कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, तो 9 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 2, तो 4.5 हो गया, तो 0.045 हो गया, तो 1 प्लस 0.045 कर दिया, यस। तो 1 प्लस आई की पावर n कितना होगा, 10 ईयर्स के सेमी एनुअल पीरियड कितने हो गए, 20 हो गए, निकाल लेंगे हम। चौथा फैक्टर आपका दैट इज कौन सा है, चौथा ऑप्शन कौन सा है वो देख लेते हैं हम। चौथा ऑप्शन है 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली ना, 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो क्वार्टरली में बेटा याद रखना कि डिवाइड बाय क्या करेंगे हम, 4 करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे और टाइम को भी 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8% डिवाइड बाय 4 कितना हो गया, 0.02 हो गया। इस 0.02 को रखा 10 के आपका 10 मल्टीप्लाई 40 पीरियड हो गए, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। चारों ऑप्शन में जो भी ऑप्शन का वैल्यू आपका दैट इज, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का केस है कि बोरिंग का केस है, फॉलोइंग 4 ऑप्शन अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के केस में जिस कंपाउंडिंग फैक्टर की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो मेरे लिए बेटर होगा। आप कैलकुलेशन करके देख लेंगे, डिसाइड कर लेंगे कि किसके लिए आपका दैट इज वैल्यू ज़्यादा है। जिस ऑप्शन के लिए भी वैल्यू ज़्यादा होगी वो ऑप्शन आपके लिए बेटर होगा। दैट मीन्स ऑलवेज रिमेंबर व्हेन एवर वो डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन आएंगे तो बी केयरफुल। अगर हमें इस किस्म का डिसीजन लेना है कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेटर है, तो देर आर डिफरेंट आपका दैट इज वे टू सॉल्व व्हाट, टू मेक व्हाट डिसीजन। One of them is what के calculate future value by assuming any present value। आप फ्यूचर वैल्यू निकाल के तो डिसीजन ले लीजिए, अदरवाइज आप कंपाउंडिंग फैक्टर की मदद से बहुत आसानी से डिसीजन ले सकते हैं। आगे चल के और भी डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम इफेक्टिव रेट की भी हेल्प लेते हैं, तो कैलकुलेट करके आप डिसीजन ले लेंगे। दैट मीन्स आपका दैट इज ये क्वेश्चन नंबर 2 भी गया ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है वो देख लेते हैं हम। This is also very important question. It is also past paper question. An individual has purchased worth rupees 2,75,000 of defense saving certificate. The certificate expires in 25 years and the interest rate is computed. It is not compounded. मैं आपको बोल दूं बेटा, इसमें स्टूडेंट जो जर्नली गलती करता है, मैं आपको बोल दूं जर्नली जो गलती होती है स्टूडेंट से, वो कंप्यूटेड को कंपाउंडेड पढ़ता है। आप जब फ्लुएंटली क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, तो मैं होऊंगा ना, तो मेरे मुंह से भी आपका प्रोबेबली क्या निकल जाएगा, कंपाउंडेड निकल आएगा। क्योंकि कंपाउंडेड की प्रैक्टिस इतनी आपका दैट इज इतनी ज्यादा रहती है ड्यूरिंग कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। द वर्ड कंपाउंडिंग की आपकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा रहती है कि कंप्यूटेड का वर्ड स्टूडेंट के लिए मुंह से क्या निकल जाता है, कंपाउंडेड। व्हाट ही इज सेइंग, be careful. An individual has purchased worth rupees 2,75,000 of defense saving certificate. The certificate expires in 25 years. And simple interest rate is computed quarterly at the rate of 3% per quarter. Interest checks are mailed to certificate holder every 3 months. ठीक है ना। Determine the interest the individual can earn. The individual can expect to earn every 3 months. What amount can he expect to receive at the end of 25 years? दो चीजें पूछी हुई हैं, दो पार्ट पूछे हुए हैं। अगर ये एग्जाम में आएगा तो 2 हिस्सों में इसी तरह से डिवाइड होकर आएगा। हर पार्ट 2 मार्क्स का आना है, ये नेसेसरी है। तो जो इंटरेस्ट जिसमें निकालना है वो 2 मार्क्स का आ गया, और फ्यूचर वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है बेटा वो 2 मार्क की हो गई। तो इसको 2 हिस्सों में ही हम इसको इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में क्या है आपका, दैट इज हम आगे बढ़ेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्यूशन लेके चलते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है कि आपका बोला हुआ है कि इंटरेस्ट रेट इज कंप्यूटेड। एन इंडिविजुअल हैज परचेज वर्थ रुपीज 2,75,000 डिफेंस सर्टिफिकेट, ये प्रेजेंट वैल्यू है, तो ये पी हो गया, पी इज इक्वल टू 275,000। यस, ठीक है ना। रेट कितना दिया हुआ, 3% पर क्वार्टर। इट शुड बी रिमेंबर, ये 3% क्या है, पर क्वार्टर है, ये पर क्वार्टर है, ये पर क्वार्टर है, ये याद है, ये पर एनम नहीं है। इंटरेस्ट रेट, सिंपल इंटरेस्ट रेट इज जनरली डिफाइंड पर एनम, but sometime it also happens that it may define per quarter, per semi-annual period, even it can be defined per day. Now presently it is what 3% per quarter,
तो 3% पर क्वार्टर है तो इसे पर एनम में चेंज करेंगे। देयर आर टू वेज। इस पार्ट को सॉल्व करने के मेरा बच्चा दो तरीके हैं। मैं या तो 3% पर क्वार्टर को किस में कन्वर्ट करूं, पर एनम में कन्वर्ट करूं, मैं ना भी करूं तो भी हो जाएगा। बोथ मेथड्स आर करेक्ट। मैं दोनों मेथड से मैं आपको यहां पे करके बता देता हूं, ठीक है। बी केयरफुल इन योर एग्जाम। 3% पर क्वार्टर है बेटा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 12% पर एनम हो गया, ठीक है। टाइम कितना है आपका? 3 महीने का सिंपल इंटरेस्ट मुझे मेल करना है, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे? 12 से, तो आपका 1/4 ईयर आ गया। यस सर, ये 1/4 ईयर आ गया। नाउ व्हाट? मुझे इंटरेस्ट आई निकालना है। नाउ इट विल बिकम वेरी वेरी सिंपल। मुझे आई कैलकुलेट करना है, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा? PRT। यस सर, तो P कितना है? 2,75,000। यस, R कितना है आपका? दैट इज 12%, तो 0.12 हो गया बेटा। टाइम कितना हो गया? 1/4। कैलकुलेट करोगे 8250 आएगा। खत्म, 2 मार्क मिल गए। सो सिंपल। And it was asked in examination. This is what the first method, alternate method to solve what? To alternate method to find what आपका that is simple interest. P कितना है बेटा? 2,75,000। ना अब की बार मैंने रेट को चेंज नहीं किया। अगर मैं रेट को चेंज नहीं करूंगा ना तो मुझे टाइम को चेंज करना पड़ेगा। एक चीज याद रख लीजिए, दिमाग में बिठा के लिख लीजिए। अगर मैं आपका जैसे मैंने ऊपर जो है पहले पार्ट में मैंने रेट को बेटा चेंज किया, पर क्वार्टर था, इसको मैं आपका पर एनम लाया, मल्टीप्लाई बाय 4 किया, 12% कर दिया। टाइम को मैंने 3 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट किया। जब रेट पर एनम है तो टाइम ईयर्स में होगा। जब रेट को मैं पर क्वार्टर रखूंगा तो टाइम को मुझे लाजमी तौर पे क्वार्टर में रखना पड़ेगा। इट शुड बी रिमेंबर। तो रेट मेरे पास कितना है? रेट आपके पास 3% सर पर क्वार्टर है, तो इट इज व्हाट? 0.03 हो गया। टाइम को मैं क्या ले लूंगा? टाइम को मैं क्या ले लूंगा? टाइम को मैं क्या ले लूंगा? टाइम इज इक्वल टू व्हाट आपका? दैट इज 3 मंथ्स है। 3 मंथ्स का मैं क्या ले लूंगा? 1 क्वार्टर ले लूंगा। यस सर, यस सर। 3 महीने का मतलब 1 क्वार्टर हुआ ना। मुझे 3 महीने का सिंपल रिटर्न निकालना था। पहले पार्ट में मैंने रेट को पर एनम किया तो टाइम को मैं ईयर में लाया। दूसरे पार्ट में मैंने रेट को पर क्वार्टर में रहने दिया तो टाइम को मैं किस में लाऊंगा? क्वार्टर में लाऊंगा। तो 3 मंथ का 1 क्वार्टर हो गया। आई इज इक्वल टू वही लगा दूंगा PRT। तो P इज इक्वल टू कितना है? वही 2,75,000 है। रेट कितना है बेटा आपका? 3% पर क्वार्टर था तो 0.03। टाइम कितना है? 1 है। मल्टीप्लाई करोगे आंसर 8250 ही आएगा। तो बोथ मेथड्स आर करेक्ट। सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा है? सेकंड पार्ट में उसने पूछा है कि फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी। अगर मैं दोबारा से क्वेश्चन को देखूं तो मुझे पता चलेगा व्हाट अमाउंट कैन ही एक्सपेक्ट टू रिसीव एट द एंड ऑफ 25 ईयर्स। 25 साल के बाद उसके बाद अमाउंट कितना मिलेगा, ये हमें वॉच करना है। तो 25 साल के बाद अमाउंट कितना मिलेगा उसके लिए हम चलते हैं कि एस निकालना है। तो एस इज इक्वल टू P इंटू 1 + RT, ठीक है ना। अब अगर मैं रेट को आपका दैट इज पर एनम लेता हूं, P तो मेरे पास कितना है? 2,75,000 है। यस सर। रेट को मैं पर एनम लेता हूं तो पर एनम क्या था? 12% था, तो 0.12 हो गया। टाइम कितना है? 25 साल है। मल्टीप्लाई कर दूंगा 1100,000 आएगा मेरे ख्याल से आंसर। चेक इट, ऑप्शन में चेक कर लीजिए, आपको दिखेगा कोई भी एक ऑप्शन होगा जिसमें आपका 8250 और 1100,000 आ जाएगा। दैट इज व्हाट ऑप्शन डी, डेल्टा इज द आंसर। इसमें आंसर जो होगा वो बेटा डेल्टा होगा। ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 10 में आंसर जो था वो अल्फा था, ठीक है ना। और थर्ड वाले क्वेश्चन में आंसर क्या है? डेल्टा है। डेल्टा मीन्स व्हाट? डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन गया, मैं चौथे क्वेश्चन पे पहुंच गया। अब चौथे क्वेश्चन पे जाएंगे हम, फोर्थ क्वेश्चन पे जाएंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन को हम देख लेंगे, डिस्कस करते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन में क्या है। फोर्थ क्वेश्चन वंस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल्सो आस्क्ड इन आपका एग्जामिनेशन। 3 पार्ट में ये आ सकता है, तीनों आपका दर इज हमें इंटरेस्ट या अमाउंट निकालना है इस क्वेश्चन में। वॉच करते हैं, देखते हैं और फिर इसके सोल्यूशन को लेके चलते हैं। एन इन्वेस्टर रिसीव द टोटल ऑफ ₹5,700 पर एनम इन इंटरेस्ट फ्रॉम 3 स्टॉक्स yielding what 4, 5 and 8% respectively. Simple interest per annum respectively. The amount at 4% is ₹20,000 more than the amount invested at 5%. पहली चीज ये आपकी इंपॉर्टेंट है कि the amount invested at 4% is ₹20,000 more than the amount invested at 5%. अगर मैं 5% पे अमाउंट इन्वेस्टेड x ले लेता हूं तो 4% पे कितना होगा? x + 20,000। तो मैं इसी तरीके से स्टार्ट करूंगा।
more than the amount invested at 5%, and the interest from the 8% investment is 8 times the interest from the 5% investment. Amount of money invested in each stock is, तीनों में कितना कितना स्टॉक हुआ है ये मुझे निकालना है. तो मैं लेट करके चलूंगा कि 5% पे आपका, दैट इज मैं फर्ज कर लेता हूं, क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं. दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 4. अल्हम्दुलिल्लाह चौथे क्वेश्चन पे पहुंच गए. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, वो कह क्या रहा है, वो आपका ये कह रहा है कि आपका देयर इज टोटल इंटरेस्ट दिया हुआ है, कैपिटल आई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5700. एम आई राइट? यस सर. Amount invested at 4% investment is rupees what 20,000 more than amount invested at 5%. तो at 5% पे मैं क्या लेट कर लूँ, अमाउंट इन्वेस्टेड x है, तो 4% पे कितना होगा, जल्दी बोलिए सर. x प्लस 20,000. वेरी गुड बेटा, x प्लस 20,000. ये दोनों का प्रिंसिपल आ गया. तो आप मुझे बताइए कि आपका दर इज इसका इंटरेस्ट क्या होगा, इसका इंटरेस्ट क्या होगा, इसका इंटरेस्ट क्या होगा. I1 होगा 5% पे, तो 5% पे आपका दर इज क्या होगा, आपका 5% पे मैंने अमाउंट इन्वेस्ट किया है x, इंटर 0.05, टाइम कितना है 1. I2 क्या होगा, x प्लस 20,000. यस सर. इंटू वॉट 4%. यस सर. टाइम कितना है 1 ईयर. अच्छा, अब वो जो चीज बोल रहा है वो आपका तीसरी जो चीज बोल रहा है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कंफ्यूज ना करे एग्जाम में. अच्छा, दोनों की 4 और 5% वाले का तो इसने क्या रिलेशन दे दिया, लेकिन उसने 8% इन्वेस्टमेंट वाले को क्या बोला हुआ है कि 8% की जो इन्वेस्टमेंट है वो 8 टाइम द इंटरेस्ट फ्रॉम द 5% इन्वेस्टमेंट है. यानी 5% की इन्वेस्टमेंट की आपका एंड द इंटरेस्ट फ्रॉम द 8% इन्वेस्टमेंट, जो इंटरेस्ट है 8% इन्वेस्टमेंट का वो कितना है 8 टाइम द इंटरेस्ट एट 5%. यानी कि आई ऊपर वाला I2 था बेटा, अब ये I3 जो है वो क्या है 8 टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट एट 5%, यानी कि I1, यानी कि 8 इंटू 0.05x हो गया. एम आई राइट बेटा? I1, I2, I3, टोटल I इज गिवन, दैट इज 5700. तो मजे से इक्वेशन बन गई. यस सर. क्या बन गई, 5700 इज इक्वल टू व्हाट, I1, व्हाट इज I1, 0.05x प्लस व्हाट आपका दैट इज I2 इज व्हाट x प्लस 20,000 इंटू व्हाट 0.04 इंटू 1 प्लस व्हाट, तीसरी क्या है आपका 8 इंटू 0.05x. एम आई राइट? पूरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x बन गई, सिंगल इक्वेशन हो गई. कैलकुलेटर में आपका डायरेक्ट आपका मोड 5 करके 1 करके मौजूद है, आप डायरेक्ट पूरी इक्वेशन को फीड करेंगे. हर किसी को कैलकुलेटर पे सिंगल वेरिएबल वाली इक्वेशन को सॉल्व करना आता है. x की वैल्यू क्विकली निकाल सकोगे. मैं आपको बता दूं इंशाल्लाह x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, दैट इज 3000 आएगी. कितनी आएगी, 3000. यस सर. यानी कि ये अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है कहां पे बेटा, 4% पे. तो एट 5% पे अमाउंट कितना है, जल्दी बोलिए, x प्लस 20,000. तो x प्लस आपका दर इज ये आएगी 10,000, सॉरी ये आएगा बेटा 10,000. ठीक है ना, x प्लस 20,000 हो गया, तो 10,000 प्लस 20,000 कितना हो गया, 30,000. यस. और तीसरे पार्ट में वो क्या बोल रहा है, तीसरे पार्ट की इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है. मुझे पता है कि I3 इज इक्वल टू क्या है, I3 इज इक्वल टू, मुझे ये मालूम है कि I3 इज इक्वल टू क्या था, 8 इंटू 0.05 इंटू x कितना है 10,000. ठीक है, I3 कितना होता है P3 इंटू R3 कितना है 0.08, टाइम कितना है 1 ईयर, इंटू 8 इंटू वॉट 0.05 इंटू 10,000. ओके, तो P3 की वैल्यू आ जाएगी 50,000. इन दिस वे मैं तीनों वैल्यू निकालने में कामयाब हो गया. दैट इज I1, I2, I3 इज इक्वल टू दिया हुआ था 5700. एक का मैंने आपका प्रिंसिपल लेट कर लिया मेरा बच्चा, आपका दैट इज x लेट कर लिया. आपका 5% पे क्या था आपका, दैट इज x प्लस 20,000 था. इंटरेस्ट एट व्हाट 8% इन्वेस्टमेंट इज व्हाट 8 टाइम द इंटरेस्ट एट 5% इन्वेस्टमेंट. उससे मैंने I3 बनाया, तीनों को 5700 के साथ इक्वेट किया. x की वैल्यू निकली 3 अपना 10,000 निकली, प्लस 20,000 किया तो 30,000 5% पे आ गई, और P3 निकाला, दैट विल गिव यू व्हाट आपका 50,000. ये तीसरा भी गया. ये सारे पास पेपर के क्वेश्चन थे जो आपका आहिस्ता आहिस्ता हम कर रहे हैं. नाउ व्हाट आपका दैट इज, हम आगे बढ़ते हैं. Now what? Fourth question. A saving scheme involves investment of ₹100,000 per annum for 4 years. On the last day of the year,
ठीक है यार, ये ब्रैकेट में ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर लिख दिया ना, इससे मुझे रिलैक्स हो गया। ये एन्युटी का क्वेश्चन है, दिस इज एन्युटी कंपाउंडिंग। यस, व्हेन आई से एन्युटी कंपाउंडिंग दैट मीन्स व्हाट, एस की बात कर रहा हूं मुझे और आपको। मैंने आपका इस क्लास के दौरान ही मैंने आपको बोला एस बोले तो कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग बोले तो 5वां चैप्टर, तो दिस इज एस। अच्छा, उसने बेचारे ने आपका क्वेश्चन में बहुत अच्छे से मेंशन कर दिया, दिस इज व्हाट, थैंक यू वेरी मच कहना चाहिए उसको। हमें ये कहना चाहिए कि भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्यों सर, क्यों शुक्रिया करना चाहिए? बिकॉज व्हाट ही इज सेइंग इन ब्रैकेट दैट ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर, तो दैट मीन पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ द ईयर ना। तो अगर पेमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर मेड हो रही है तो दैट मीन्स क्या हो गया, ऑर्डिनरी एन्युटी। सर व्हाट इज एन्युटी? एन्युटी इज नथिंग, सीरीज ऑफ रेगुलर पीरियोडिक पेमेंट ऑफ इक्वल अमाउंट इज कॉल्ड एज एन्युटी। Two types of annuity, one is ordinary annuity, another is annuity due. Ordinary annuity is also called as regular annuity. On the other hand, what annuity due is called as what, immediate annuity. What happens in case of what, sir, ordinary annuity? What is actually ordinary annuity? That annuity in which payments are made at the end of the payment period is called as ordinary annuity. यहाँ पे यही बोल रहा है, on the last day of the year, यानी कि ईयर खत्म हुआ फिर पेमेंट हुई, तो दैट मीन पीरियड आपका दैट इज पेमेंट से पहले। यस, पेमेंट बाद में पीरियड पहले तो ऑर्डिनरी। तो सर अगर पेमेंट पहले और पीरियड बाद में तो एन्युटी ड्यू। तो दैट मीन्स ये ऑर्डिनरी एन्युटी का क्वेश्चन है। अ सेविंग स्कीम इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिंग ₹100,000 पर एनम फॉर 4 ईयर। हर साल 100,000 हो रही है इन्वेस्टमेंट, ईच एंड एवरी ईयर 100,000 हो रही है। तो ये आर हो गया, कितने साल तक? 4 साल तक है। इफ द इंटरेस्ट रेट इज 10%, व्हाट इज द सम रिसीव एट द एंड ऑफ 4th ईयर? चौथे साल के एंड पर सम कितना रिसीव होगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आपका दैट इज आपके लिए बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 5 है, आई थिंक क्वेश्चन 50 है ना ये? यस सर, नहीं दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 है ये। आर कितना दिया हुआ है सर? व्हाट इज आर? आर इज गिवन हियर इज व्हाट, आर कितना दिया हुआ है आपका? 100,000 दिया हुआ है। यस सर। एन कितना है सर? एन इज इक्वल टू 4 है, एस निकालना है, ठीक है ना। आई कितना है सर? व्हाट इज आई? चेक कर लेते हैं। व्हाट इज आई? आई इज व्हाट आपका 10%। यस सर। तो 10% का मतलब कितना हो गया बेटा? 0.1 हो गया। नाउ यूजिंग व्हाट, एस इज इक्वल टू व्हाट, आर इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है, खत्म। ये 100,000 हो गया, 1 प्लस 0.1 इंटू एन कितना है? 4 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 0.1। व्हाट विल गेट? यू विल गेट दी आंसर। क्या आंसर आएगा? कौन सा ऑप्शन आंसर आएगा सर? क्या वाला कौन सा ऑप्शन आंसर आएगा? इट विल बी व्हाट, बीटा। ये क्वेश्चन नंबर 50 था, 4th नहीं था, 50 था। आंसर आपका देयर इज बीटा आएगा। यस सर, ठीक है ना। तो बीटा पे क्या वैल्यू दी हुई है? दैट विल गिव यू व्हाट दी आंसर ना। तो आंसर इज बी होगा। आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप सिर्फ जस्ट कैलकुलेशन करेंगे, यू विल गेट दी आंसर। 5वां क्वेश्चन गया। शैल आई प्रोसीड? यस सर, आप प्रोसीड हो। यस सर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, रीड करेंगे और आपका दरीज बढ़ेंगे ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A company will have to pay rupees 500,000, that is 5 million, to replace a machine in 5 years. 5 साल के बाद एक मशीन को रिप्लेस करना है आपका, दैट इज 5 मिलियन की है। इसका मतलब मुझे जो वैल्यू चाहिए वो 5 साल के बाद चाहिए। तो कितनी चाहिए? 5 मिलियन की। मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन है, दैट मीन सिंकिंग फंड का क्वेश्चन है। सो व्हाट इज सिंकिंग फंड? A fund which is to be accumulated with the help of series of regular periodic payment of equal amount in order to repay certain amount of debt in order to replace an asset is called a sinking fund. Sinking fund is the best application of what? Application of what? Ordinary annuity. S into R into 1 plus I की पावर n का वाला फार्मूला लगेगा। Yes, watch it, हम clearly देखते हैं कि है क्या। A company will have to pay rupees 5 million to replace a machine in 5 years. The company wishes to save up to fund
the new machine by making a series of equal payment into an account which pays interest at the rate of 8%. The payments are to be made at the end of the year. पकड़ लिया, at the end of the year, that means ordinary annuity है, खत्म. And then at each year, then each year, and then at the end of each year, and therefore, यानी blah 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 आगे तक आपका इसी तरीके से जा रहा है. What fixed annual amount must be set aside so that the company saves rupees 5 million? Very simple question, just R calculate करना है. Generally thinking, one problem for replacement of an asset can be solved in how many steps? 2 steps. ठीक है ना? But problem can be solved in single step if and only if trade in or scrap value is 0. याद रख लीजिए, यहां पे कोई भी ट्रेड इन और स्क्रैप वैल्यू आपके डेटे दी हुई नहीं है. इसका मतलब प्रॉब्लम जस्ट एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा. इसमें एस दिया हुआ है. सर एस कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 एस दिया हुआ है सर 500 मिलियन 5 मिलियन सॉरी 6 जीरो आ गए. मिलियन में 6 जीरो होते हैं भाई, याद रख लेना. मिलियन कंटेन 6 जीरो. जनरली पीआरसी का स्टूडेंट बेचारा ये भी भूल जाता है ना कि सर मिलियन में कितने जीरो होते हैं. मिलियन में 6 जीरो होते हैं, कुछ भी नहीं है, बस ये याद रख ले. तो ये 6 जीरो तो मिलियन है. आर कैलकुलेट करना है. मशीन को रिप्लेस कितने साल के बाद करना है? वॉच करते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं. मशीन को रिप्लेस करना है 5 मिलियन है इन 5 ईयर्स, 5 साल में रिप्लेस करना है. तो इसका मतलब एन इज इक्वल टू 5 पीरियड्स हो गया. यस सर. आई इज इक्वल टू कितना हो गया देख लेते हैं हम. आई कितना दिया हुआ है? इसका इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ है सर? 8% दिया हुआ है. 8% पर एनम दिया हुआ है सर. तो 8% है तो आई इज इक्वल टू 8% हो गया, 0.08 हो गया. सर आपका दर इज फार्मूला लगेगा एस इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई. वेरी सिंपल. एस कितना दिया हुआ है सर? 5 मिलियन दिया हुआ है. यस सर. आर निकालना है. यस सर. इंटू वोट 1 प्लस आई. आई कितना है बेटा? 0.08 है. एन कितना है आपका? दर इज 5 है. -1 डिवाइडेड बाय 0.0 आपका 8. इन दिस वे वी शैल कैलकुलेट वोट आर. जो भी आएगा वो आर का आंसर होगा. ऑप्शन आपका दर इज इसमें कौन सा आएगा बेटा? इसमें ऑप्शन आपका दर इज आएगा अल्फा आएगा. ए ऑप्शन आंसर होगा. आप कैलकुलेट करके देख लेंगे, ऑप्शन ए विल बी द आंसर ना. ठीक है ना. तो दैट मीन्स आपका इन दिस वे हमने 6 क्वेश्चन आज हमने कंपाउंडिंग से रिलेटेड किए. उसमें हमारे पास 1-2 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के आए, 1-2 क्वेश्चन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एन्युटी के भी आए. स्टिल कंपाउंड इंटरेस्ट के 1-2 क्वेश्चन और भी है, वो भी हम डिस्कस करते हुए नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह. हमारे पास मेरे पास बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन है. जितना हो सकेगा हम जो है वो आपका कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग से रिलेटेड मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास वीडियो के थ्रू सॉल्व करके भेजता रहूँगा इंशाल्लाह. तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे. ठीक है ना. तो टिल जब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफ़िज़.